The answer is bitrate, and it's part of the reason more pixels doesn't always mean a better picture. On a fundamental level, bitrate is exactly what it sounds like. A higher bit rate means that each frame of the video you're watching has more data that ultimately forms the image. You see, streaming video on the internet is often compressed, so it doesn't take up as much bandwidth and loads on your device more quickly. To do this, some of the information from the original video that's uploaded to YouTube is discarded. To put this in perspective, uncompressed 1080p video at 30 frames per second can take up around 1.5 gigabits of data per second, which is a higher bitrate than many home internet connections would be able to easily handle. Compressed video, on the other hand, might only take up a few megabits per second, or even below 2 megabits per second, depending on the service. Immediately, you can see how important video compression is. There are several ways to compress video, but a simple example is to only keep data representing how pixels change from one frame to the next and discarding the rest, instead of storing 2 complete raw frames. Another is to discard data for parts of the image that look very similar, such as on a large green football field. These techniques make it possible to save lots of bandwidth with, hopefully, minimal or even imperceptible loss of quality. But all video compression isn't created equal. Too much compression will make your videos look like a blocking mess, even though they still might be at a high resolution, while too little will put more load on your network or device for no appreciable gain. So how much does YouTube compress your videos, and how does that 1080p premium option differ? Google hasn't publicly disclosed their typical ranges for YouTube video bit rates for either regular or premium 1080p videos. We can tell you that YouTube does use variable bit rates, meaning the bit rate at any given moment will depend on exactly what's happening in the video, with scenes featuring lots of constantly changing visual elements generally using a higher bit rate. And we can also tell you that both the regular and enhanced versions appear to mostly be in the single digits of megabits per second, both of which are, of course, far lower than uncompressed video. As to whether it actually looks better, after all, it's a feature you have to pay for, some users have said that videos have more detail and fewer weird artifacts that can result from compression, but that the differences can be relatively subtle and challenging to notice unless you're doing a side-by-side comparison. Which does make some sense, considering bitrate, like resolution, is one of only a number of factors that go into exactly how good a video looks, with other factors like HDR support, color grading, frame rate, and the equipment used to record and हालांकि लास्ट आईपीएल सीजन के लिए सीएसके ने जड्डू और अश्विन अन्ना दोनों को रीयूनाइट कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बटलर और सिराज अपनी अपनी टीम से रिजेक्ट होकर गुजरात टाइटंस में आ गए। ईशान किशन और मुंबई इंडियंस का भी ब्रेकअप हो गया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली केएल राहुल ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। एज यू ऑल नो, केएल राहुल ने होली ट्रिनिटी कंप्लीट कर लिया भाई। ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल जो तीनों ट्रॉफीलेस टीमों के लिए खेल चुका है। यानी इस मेगा ऑक्शन में क्लियरली काफी टीम ने काफी बड़े मूव्स किए हैं, काफी टीम्स अपग्रेड हुई है और काफी टीम्स डिग्रेड भी हुई है। बट इस वीडियो में जिन 4 टीमों की मैं बात करने वाला हूं उसमें से आई थिंक मैक्सिमम टीम्स अच्छा ही करके आई हैं। एज यू ऑल नो, इस वीडियो सीरीज में हम आईपीएल के मेगा ऑक्शन में हुए ड्रामे को एनालाइज करते हैं, जो नई टीम्स बनी हो उसका स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ्स वीकनेस देखते हैं, टीम की एक नई प्लेइंग 11 भी बनाएंगे और उनकी ऑक्शन परफॉर्मेंस को भी रेट करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आरसीबी, पंजाब और केकेआर को कवर किया था, नहीं देखी तो जाके देख लेना। और इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस एंड दिल्ली कैपिटल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएसके की। देखो भाई, बाकी टीमों को जरूरत होती होगी ऑक्शन स्ट्रेटजीज की और नए प्लेयर्स ढूंढ के लाने की। इनका काम सिंपल है, ये पुराने प्लेयर्स को लाके वापस टीम में रख देते हैं और फिर डिपेंड करते हैं एक 43 ईयर कीपर पे जो आके इनके लिए फिनिशिंग भी कर देता है, कीपिंग भी कर देता है और मैच भी जितवा देता है और फिर उसके बाद फिर इनको फाइनल भी ले आता है। नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा, जाओ आजमा लो। एंड सीएसके के लिए तुम्हें पता ही है, कहावत है आईपीएल में कि बाकी 9 टीमें लीग स्टेज में मैच लगाती है सीएसके के साथ फाइनल खेलने के लिए। एंड जैसे इन्होंने इस साल टीम बनाई है, आई थिंक वो फिर से ट्रू हो सकता है। सैम करन को वापस ले आए हैं, अश्विन अन्ना को वापस ले आए हैं, डेवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, किसी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। सीखो कुछ आरसीबी पुराने प्लेयर्स को कैसे वापस लाया जाता है। टेक्निक गलत हो तुम्हारी। बट इनकी सबसे बड़ी बाय इस सीजन की ऑब्वियसली है राशिद खान का ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, नूर अहमद, जो कि ये 10 करोड़ में लेके आए हैं। और इमेजिन चेपॉक की पिच पे अश्विन, जड्डू और नूर अहमद। खत्म भाई, खत्म खत्म। देखो, जो प्लेयर खरीदे हैं सीएसके ने वो स्क्रीन पे आ रहे होंगे, पॉज करके पढ़ लेना। वैसे सारी चीजें टेलीग्राम पे भी मिल जाती है, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। अब प्लेइंग 11 देखी जाए तो ओपनिंग पे ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन,
नाम के, सॉरी। देन डेवॉन कॉनवे आ जाएगा, फिर राहुल त्रिपाठी इनकी न्यू बाय फ्रॉम सनराइजर्स हैदराबाद। देन वी हैव शिवम दुबे एट नंबर 4 जो रिटेन हुआ था। फिर दीपक हुडा लेके आए हैं, मुझे लग रहा है ये सॉलिड इंडियन कोर बना रहे हैं मिडिल ऑर्डर का, त्रिपाठी, दुबे और दीपक हुडा का। 6 पे जड्डू को खिला सकते हो, 7 पे ऑब्वियसली थाला फॉर अ रीजन थाला आ जाएंगे, 8 पे अश्विन, 9 पे सैम करन, 10 पे नूर अहमद और 11 पे मथीशा पथिराना। आई नो तुम लोग के बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लेकिन मैंने बैटिंग को थोड़ा इंडियन फोकस रखा है और कोशिश करी है कि इनकी बॉलिंग हैवी और स्ट्रॉन्ग करी जाए। इनफैक्ट इनके पास क्या इंपैक्ट प्लेयर्स है भाई, अंशुल कंबोज है, विजय शंकर है, खलील अहमद है और नेथन एलिस भी बैठा हुआ है फॉर रॉ पेस। तो आई थिंक इनकी पहली स्ट्रेंथ तो यही है दैट दे हैव अ सॉलिड इंडियन कोर। अपार्ट फ्रॉम थाला, दुबे एंड जड्डू, ये लोग दीपक हुडा जैसा प्लेयर ले आए हैं, विजय शंकर ले आए हैं एंड राहुल त्रिपाठी आ गया है टीम में। सेकेंडली इनकी स्पिन बॉलिंग टॉप नॉच लग रही है, आई डोंट थिंक एनी टीम कैन मैच दैट। थर्डली आई थिंक दे हैव सम एक्साइटिंग यंग टैलेंट्स इन द टीम। अंशुल कंबोज है, गुरजपनीत सिंह है, रामकृष्ण घोष है और एंड्रे सिद्धार्थ। ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो एकदम नए हैं और धमाका कर सकते हैं इस सीजन। एंड इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भाई, इस बार पैसा बचेगा। दीपक चहर नहीं है टीम में तो वो हॉस्पिटल बिल कम आएगा और एल क्लासिको में भी और मजा आएगा जब दीपक चहर मुंबई इंडियंस से खेल रहा होगा। तो मुझे तो ये पूरी टीम सॉलिड लग रही है। तुम चाहो तो खलील को मेन टीम में खिला सकते हो, ऊपर रचिन रविंद्र को डाल दो, मतलब इट्स अप टू यू यार, कैसे भी कॉम्बिनेशन बना लो। ऑल राउंडर्स की टीम में बिल्कुल कमी नहीं है, बैटिंग अच्छी है, स्पिन अच्छी है, लेफ्ट आर्म पेसर्स है, रॉ पेस भी पड़ी हुई है, बेंच भी अच्छी है यार। इट्स हार्ड टू फाइंड वीकनेसेस इन दिस टीम। अब अगर तुम मुझे कहोगे थोड़ी सी नेट पिकिंग करके एक वीकनेस ढूंढ ही ले, तो मैं बोलूंगा पेस बॉलिंग में एकदम कोई लीडर पेसर नहीं है। मतलब देखो पथिराना, सैम करन, खलील, ये सारे काफी यंग पेसर्स है, खेल रहे हैं काफी टाइम से, बट यंग अभी भी है। लीडर वाली क्वालिटी वाला पेसर कोई नहीं है इनके पास आई थिंक। देन ऑल्सो आई थिंक वन ऑफ देयर मेजर कंसर्न्स इज कि इनके पास कोई और फिनिशर है ही नहीं। मतलब थाला पे तुम इतना रिलाय कर रहे हो कि तुमने कोई और फिनिशर लेने का सोचा भी नहीं। कोई ऐसा प्लेयर नहीं लिया जो 6-7 नंबर पे आके हिटिंग कर सके। एंड एज आई सेड भाई, दे डोंट केयर ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। उनको चाहिए माही भाई आके वो 2 बॉल खेले, अब उसमें चाहे हराए चाहे जिताए वो देखा जाएगा, लेकिन उनको और कोई चाहिए नहीं जो क्रेडिट ले जाए फिनिशिंग का। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। बट स्टिल आई वुड से यार, आफ्टर ऑल दैट उन्होंने काफी अच्छी टीम बना ली है। ओवररेटेड बाय में मैं तो कोई ढूंढ ही नहीं पाया। मुझे लगा है एप्ट खरीदे हैं प्लेयर्स और प्राइसेस भी सही है यार, इतना कोई महंगा इन्होंने खर्चा करा ही नहीं है। 10 करोड़ से ऊपर किसी को दिया नहीं, और वो भी दिया किसको, जो स्पिनर, जो इनकी पिच पे सबसे ज्यादा काम आने वाला है। तो वो तुम्हें अगर कोई दिख रहा है तो मुझे कॉमेंट्स बता देना। अंडररेटेड बाय में आई वुड लाइक टू पुट सैम करन बिकॉज 2.4 करोड़ में सैम करन कहां से ले आए तुम भाई। नाउ प्लेयर आई थिंक दे शुड हैव बॉट, मुझे ऐसा लगता है कि इनको मिडिल ऑर्डर के लिए ना एक रायली रोस्टो टाइप का प्लेयर चाहिए था जो कभी खिलाते, बट अगर खिलाते तो भाई हो सकता था वो ऐसा फिनिशिंग कर दे आके, क्योंकि अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट में कोई ऐसे और फिनिशर्स थे नहीं, इसलिए मेरे को रायली रोस्टो ही मिला सिर्फ। अगेन मैं कह रहा हूं इतना जरूरी नहीं है, आई थिंक दे हैव कवर्ड ऑल बेसिस, उनको जरूरत नहीं है, बट स्टिल कुछ ढूंढना हो तो ये ढूंढ दिया। ओवरऑल सीएसके की रेटिंग आई थिंक अ सॉलिड 9.5 कह लो। वो फिनिशर वाला थोड़ा बड़ा कंसर्न लगता है मुझे, इसलिए मैं 9 on 10 कर रहा हूँ। नेक्स्ट टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, प्रॉब्ली द ओनली टीम इन आईपीएल जिनके नाम के आगे ही फॉरेन का साइन लग जाना चाहिए, बिकॉज इनकी सारी डिपेंडेंसी उन पे रहती है हमेशा। मतलब ऑनेस्टली आईपीएल की टीम लगती नहीं, बीबीएल की टीम ज्यादा लगती है। देखो अच्छा खेलती है और पेलती भी है, बट थोड़ा सा गुस्सा तो आता है इस टीम को देख के। वो फिर बस मैं थोड़ा ओनर की ब्यूटी के चक्कर में चुप हो जाता हूँ। देखो देखो नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कमिंस इनकी टीम में और वो हेडेक भी बैठा हुआ है। एंड आई थिंक ये ऑक्शन भी यही सोच के गए थे कि भाई कमिंस, क्लासन और हेडेक तो हमारे फिक्स्ड है, हमें सिर्फ एक फॉरनर लेना है और उसके हिसाब से बैकअप लेने हैं। देखो इन्होंने रिटेंशन अच्छे करे, बट आई फील इनकी ऑक्शन परफॉर्मेंस थोड़ी और बेटर हो सकती थी। प्लेइंग 11 देखने से पहले इनके ऑक्शन के जो बायज थे वो स्क्रीन पे आ रहे होंगे, पॉज करके देख सकते हो। इनकी प्लेइंग 11 देखी जाए तो भाई अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेडेक एट द टॉप। ईशान किशन दे हैव बॉट, भाई व्हाट अ गुड बाय, व्हाट अ गुड बाय। मेरे को तो लग रहा था भाई ईशान किशन और महंगा जाना चाहिए था और बहुत टीमों को उसके लिए फाइट करनी चाहिए थी, बट सरप्राइजिंगली ठीक ठाक प्राइस में आ गए इनको। देन नंबर 4 पे आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी वुड मेक सेंस। 5 पे हेनरिक क्लासन है, 6 पे अभिनव मनोहर, एक और बढ़िया प्लेयर उठा के ले आए हैं, इंडियन है वो भी, और 7 पे तुम्हारे पास पैट कमिंस कैप्टन है, 8 पे मोहम्मद शमी, 9 पे हर्षल पटेल, 10 पे राहुल चहर एंड 11 पे तुम्हारे पास जयदेव उन्नादकट है। अभी 3 ही फॉरनर हुए हैं क्योंकि मेरा इंपैक्ट प्लेयर में फॉरनर आ रहा है, वो है एडम जैम्पा या कमिंडो मेंडेस। तो अपने हिसाब से स्पिनर खिला सकते हो। तो क्लियरली जिस टीम में सिर्फ 3 ही फॉरनर्स यूज हो रहे हो उसमें तुम देख सकते हो कि स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ होने वाली है। एकदम डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग बैटिंग लाइनअप वैसे ही था और इन्होंने अब उसमें ईशान किशन को भी डाल दिया है। मतलब डेफिनेटली इस टीम का इस बार का आईपीएल स्कोर तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने ही वाला है। जस्ट
कमिंग बैक टू सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रेंथ्स, देखो एकदम एक्सप्लोसिव टॉप 3 बैट्समैन है और थर्ड बैट्समैन तो भाई प्रूव करने के लिए वेट कर रहा है अपने आप को। देन मिडिल ऑर्डर अच्छा है, फिनिशिंग के लिए प्लेयर्स भरे हुए हैं टीम में। बॉलिंग में तुम्हारे पास कमिंस और शमी है, माना हर्षल पटेल भी है टीम में, बट वो टेक्निकली वैसे आईपीएल में विकेट्स ले लेता है तो इतनी बुरी बाय भी नहीं होगा। एंड देन यू हैव गुड स्पिन ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हैदराबाद आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि यहाँ पे राहुल चहर आ चुका है और एडम जैम्पा भी बैठा हुआ है। तो बेसिकली देखा जाए इन्होंने बैटिंग, पेस, स्पिन सब कुछ कवर करने की अच्छी तरीके से कोशिश करी है। लिटरली भुवी को शमी से रिप्लेस कर दिया यार। अब ठीक है टीम अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीकनेसेस नहीं है। सबसे बड़ी वीकनेस इस टीम की काव्या की स्माइल। ओ सॉरी, ये मेरी वीकनेसेस की बात कौन करने लग गया, सॉरी। इनकी बात करें तो इनके पास यार देखो बैकअप फॉरेन प्लेयर्स ही नहीं है। इन 3 फॉरेन प्लेयर्स पे इन लोगों की इतनी रिलायंस है कि इन्होंने इनको बैकअप करने का सोचा ही नहीं। यानी 1 कॉल फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड एंड इनकी बैटिंग और इनकी बॉलिंग और इनकी कैप्टनसी गई। बट हेड और कमिंस तो टेस्ट प्लेयर्स है भाई, ये प्रॉब्लम दे सकते हैं अगर उस टाइम पे कोई टेस्ट सीरीज आ गई तो। क्योंकि तुम्हारे पास बैकअप पे कौन है? ईशान मलिंगा, कमिंडू मेंडिस और ब्राइडन कार्स। पहली बार सुन रहा हूं इनके नाम में। ऐसा लग रहा है बस फॉरेन स्लॉट्स भरने के लिए ले लिए इन लोगों ने। इतने सारे प्लेयर्स अवेलेबल थे यार, उनको लिया जा सकता था, बट ठीक है कुछ सोच के लिया हुआ। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि भाई बुरी बाइज हो सकते हैं, हो सकता है अच्छा भी चल जाए, बट देन अगेन मुझे लग रहा है कि और बेटर प्लेयर्स लिए जा सकते थे। और अगर एक और प्रॉब्लम की बात करो तो भाई ठीक है, डिस्ट्रक्टिव बैटिंग है, टॉप 6 बहुत फोड़ने वाले प्लेयर्स है, 300 रन मार सकते हैं, लेकिन 300 चेज भी करवा सकते हैं क्योंकि हर्षल पटेल और उनादकर दोनों साथ में है टीम में। तो जितना पैट कमिंस और शमी पॉजिटिव में लेके आते हैं उतना ही ये दोनों नेगेटिव में कर लेते हैं। दैट्स व्हाई आई फील कि अगर राहुल चहर था तुम्हारे पास तो तुम एक और अच्छा फॉरेन पेसर ले आते टू पार्टनर अप विद कमिंस एंड शमी। एंड मुझे लग रहा है वो प्लेयर था मुस्तफिजुर रहमान, काफी ज्यादा अच्छा कर सकता था, स्पेशली डेथ में इनके लिए। नाउ आई एम नॉट सेइंग ये टीम अच्छी नहीं है, बट इनकी ऑक्शन थोड़ी और बेटर हो सकती थी। तो दोनों को अगर मिला के रेटिंग की जाए तो मैं इनको सॉर्ट ऑफ 8 on 10 दूंगा। ओवररेटेड बाय में मे बी हर्षल पटेल फॉर 8 करोड़, थोड़ा और सस्ते में से 1.5, 2 करोड़ में। मजाक कर रहा हूँ, बट यार मुझे वही दिख रहा है भाई, और कोई दिख नहीं रहा। देखो मानता हूँ लास्ट ईयर हाईएस्ट विकेट टेकर था शायद हर्षल पटेल, लेकिन हैदराबाद की पिच थोड़ी डिफरेंट है भाई। हो सकता है भाई हर्षल पटेल उतना काम ना आए, उल्टा बैकफायर कर जाए, बट still never know। अंडररेटेड बाइज में अब ऑब्वियसली अभिनव मनोहर है एंड अथर्व तायडे। आई आल्सो थिंक वो भी बहुत अच्छा प्लेयर उठाया है इन्होंने और काफी काम आ सकता है इनके, स्पेशली टॉप ऑर्डर में अगर अभिषेक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो। वैसे देखा जाए तो इनके पास फॉरेन में काफी अच्छे ऑप्शंस थे जो कि अनसोल्ड गए, जिनको ये रिप्लेसमेंट्स के लिए ले सकते हैं। मतलब केन विलियमसन भी अवेलेबल था, जॉनी बेयरस्टो भी अवेलेबल था और डेविड वार्नर भी अवेलेबल था, ला सकते थे उनको भी वापस। सही कह रहा हूँ ना काव्या? मेरे साथ मजाक करेगा तू? नेक्स्ट गुजरात टाइटंस। ठीक है भाई, देखो ब्रो, दिस टीम हैज माय रिस्पेक्ट, ऑनेस्टली हैंड्स डाउन माय फेवरेट टीम फ्रॉम। पिछले हफ्ते इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनके एक्स डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांट और हमास लीडर मोहम्मद देइफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट्स इशू कर दिए। चार्जेस काफी गंभीर हैं, वॉर क्राइम्स के और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के। अब मानवता के भक्षकों पर पहले भी केस तो हजारों हो चुके हैं, लेकिन यह दुनिया के इतिहास में पहला इंस्टेंस है जब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे संगीन चार्जेस लाए गए हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। नेतन्याहू और उनके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर पर मेन आरोप यह है कि गाजा और लेबनान में जो अटैक्स हुए, जो अट्रॉसिटीज हुए, जो वॉर क्राइम्स कमिट किए गए, उनकी जिम्मेदारी सीधे इन लोगों पर पड़ती है। फिर भी ये सब जानते हुए भी उन्होंने इसको रोकने के लिए, जाने बचाने के लिए कुछ नहीं किया। क्या है ये वॉर क्राइम चार्जेस? किन इंसिडेंट्स की यहां बात हो रही है और कितना सीरियस है यह मामला? कौन कौन से देश हैं जो ये सच में ये आईसीसी के ऑर्डर का पालन करेगी, नेतन्याहू को सच में अरेस्ट कर लेगी, थर दबोचेगी? जो जेनोसाइड इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमास टेरर अटैक के बाद शुरू किया है, क्या उसका जवाब देने का टाइम अब फाइनली आ गया है? शुरू करने से पहले 2 बातें मैं यहां साफ कर दूं। Android 16 is here. Whoa! Yeah! Android 16. And while my friend is still stuck on Android 11, he's actually excited about Android 16. Android 16. Android 16. He's really excited about it. So the question here is, while your phones are still waiting for the Android 15 update, why has Google launched Android 16? And major question. Every Android company now promises 2 Android updates, 3 Android updates. So if Google releases 2 Android versions in a year, will your phone lose support in just 2 years or a year? Like what? What? That's
Yeah, we'll talk about all of it. Now, before we get to the major features, first of all, who can install Android 16? See, it's only available for these Pixel devices. You'll have to flash and install Android 16. The OTA updates to Pixel devices will start coming in January 2025. And this is Android 16 developer preview. It's called Baklava. Technically, it should be something starting with W, but it's B. Anyways, the Android beta release will come somewhere in March 2025. And finally, the stable version will release around May to June 2025. Now, of course, there are some cosmetic changes in Android 15. So before we check out the major features, like side by side, if you see with Android 15, on Android 16, the notifications look slightly different. The quick setting icons are the same. If you go to the settings menu, it will now appear more categorized in Android 16. Network settings are in one section, display and phone settings are in another section. Apart from that, there's not much to see in looks. There's haptic feedback now when you increase or decrease the brightness or volume. And now when you tap on 3 dots to adjust app volumes, you get a small option called live captions. So it will automatically caption the video playing in the background. Previously it was hidden in settings, now it's just right there. Now there are 7 major or new features in Android 16. Now you can share audio to 2 devices at the same time. So there's a new option called audio sharing. You can now connect 2 Bluetooth devices to the phone. When you go to Bluetooth menu, under connection preferences, there's audio sharing. So now the same music plays on these 2 Bluetooth devices. But you might think, Samsung already had this. How is this different? Well, this is different. It uses a tech called Auracast, plus 10,000 Aura points. So it basically creates an audio stream. So by putting this username and password, all of your friends can wirelessly listen to audio at the same time. All of your friends. But here's the sad part. It requires Bluetooth LE audio, so all of the smartphones or TWS or speakers need to support Bluetooth LE audio, which is not present on older devices. Even in Pixel, it only supports Pixel 8 and above devices, so minus 10,000 Aura points. Back to square. The next feature is actually what we saw in older Android builds, but it's finally here. Notification cooldown. So suppose Zomato, Swiggy, Myntra, Instagram all plan to send you notification at the same time, your phone will buzz like crazy and it's annoying for people around you. So notification cooldown will gradually reduce the volume and silence your phone for up to 2 minutes if you receive too many notifications at the same time. But what if all of those notifications are of my crush? Android 16 will just crush the love story before it starts. Well, it excludes calls, and you can mark your crush as a priority notification, so this way the love story might or might not happen, but Android 16 won't crush it. Next up is rich ongoing notifications. I'll explain it in simple words. So suppose when WhatsApp sends you a notification, you see a WhatsApp icon here. But now imagine I book an Uber and I see the time of arrival here. I set up an alarm, I see alarm here. I have a flight boarding and I see that here instead of just the app icon. So Android is now letting apps customize the icon style here to give more information. Now I know what you're thinking. Isn't it like Apple's Dynamic Island? Well, yes or no. Android, since Android 12 displayed call timer here, screen recording here, but now letting Uber Maps and other third-party applications do it, seems like it is coming from Apple. But the implementation is old, the idea is good. If that makes sense. Talking about Apple, now there are DND modes. So you can tap here and switch between sleep, DND, work, etc. Oh, sorry, that's an iPhone. Now you see modes in quick settings and I can make my own mode. Suppose running. Now I can decide what time this mode will happen, like 8 to 9 in the morning, who can call, text me, the screen can be dark mode, like lots of it. And now I just tap and activate it, or it automatically activates at the set time. So it's basically DND but much more customizable and personal. There's also an experimental display mode, so the color of the display can adapt to the lighting of the surrounding. The keyword is color, not brightness. And it's again very Apple-esque. There is also now Health Connect in Android 16. So basically there's one place where you can store all your medical records. All your fitness app can sync and send. But when Android will do this, it will come default for every Android phone. Plus, this will also be beneficial for Android tablets and foldable devices. Now, the developer one of Android 16 is more about developers testing the version. The features will come mostly around January 2025. But again, I have a question. If Android 15 has just launched, what's the hurry in bringing Android 16 now? Well, Google wants to change Android. Usually Android stable version releases at the end of the year. Now Google wants to release it in first half of the year. So by the end of the year, they could also release a minor update like Android 16.1 or 15.1 types. Again, a bigger question is, now that Google has launched 2 Android versions in 1 year, if your budget phone comes with a promise of 2 Android updates, your phone is now just old in 1 year.
Well, see, the answer is very simple. Some brands call it 4 years of Android updates, while some brands call it 4 generations of Android updates. So if the brand says 4 year of Android updates and Google launches 2 Android versions in 1 year, you will get 5 updates in 4 years. Like Google wasn't supposed to update Pixel 6, but it got Android 16 because it supports 4 years of Android updates. But on the other hand, if the brand says 4 generations of Android updates or 4 Android updates, you will only get 4 updates in 4 years. So take this with a grain of salt. Again, everything depends on the brand. What Android version are you on? Comment below. We'll see you in the next video. Prateek signing off. Pew, pew.